Hey kids, in the previous video we have read about village houses. Now we are going to read about houses in cities. People who live in cities live in urban surroundings. Houses in the cities are made of bricks, cement and steel. The roofs are made of concrete and asbestos sheets. The floor are made of tiles and marbles. Most of the houses have doors and windows with a wire meshing to keep out the flies and the mosquitoes. जो लोग सिटीज़ में रहते हैं वो अर्बन सराउंडिंग्स में रहते हैं, मीन्स शहर का जैसा वातावरण होता है उस वातावरण में रहते हैं. जो शहरों में जो घर बने हुए होते हैं वो ब्रिक, सीमेंट और स्टील के बने हुए होते हैं, और जो रूफ्स होती हैं वो कंक्रीट्स की बनी होती हैं. एंड लोग घरों में और विंडोज़ में जो मैशिंग वायर मैशिंग यूज़ करते हैं, मीन जाली वाला दरवाज़ा या जाली वाली विंडोज़ लगवाते हैं ताकि फ्लाइज और इंसेक्ट्स जो है वो घर के अंदर ना आ सकें. In cities, there are single or two-story bungalows and also multi-storied apartment with many flats on different floors. These are known as residential colonies. The building complexes have beautiful lawns, parks, and community centers. These multi story buildings have access both through a staircase and a lift, which is also called an elevator. There is also a parking area for vehicles, usually in the basement of these buildings. These housing complexes also have good security arrangements. शहरों के जो लोग हैं वो सिंगल या फिर टू स्टोरेड बंगलोज में या फिर मल्टी स्टोरेड अपार्टमेंट्स में रहते हैं. मल्टी स्टोरेड अपार्टमेंट्स ऐसे अपार्टमेंट्स होते हैं, ऐसे घर होते हैं जहाँ पर एक घर के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा घर बनाया जाता है, और इसी तरीके से डिफरेंट फ्लोर्स पे बहुत सारे फ्लैट्स बना दिए जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठे रह सकते हैं. और जहाँ पर इस तरीके के अपार्टमेंट्स होते हैं उन्हें कॉलोनीज़ कहते हैं. और इन कॉलोनीज़ में पार्क्स, कम्युनिटी सेंटर्स, इस टाइप की बहुत सारी फैसिलिटीज़ भी दी जाती हैं. अब बहुत सारी फ्लोर्स होते हैं तो ऊपर जाने के लिए लिफ्ट्स या फिर एलिवेटर्स का भी यूज़ होता है. और यहाँ पर बेसमेंट में बहुत बड़ा पार्किंग एरिया भी मिलता है लोगों को अपनी गाड़ियाँ खड़ाने के लिए. और ये जो हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस होते हैं इनमें बहुत सारे सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स होते हैं, एक सिक्योरिटी गार्ड होता है. नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट स्लम्स. Look at the pictures on the next page. Notice the tall skyscrapers in the background, while in the foreground there are many temporary structures. Places in an unplanned way, these are called slums. These are tin and mud sheds and homes of the poor. When poor people came from village to cities in search of work, they live in these places. They may be machines, construction laborers, domestic helpers, factory workers, and rag pickers. People do not live in slums by choice. They live there as they cannot afford to live in a rented house or to build their own houses. So they make a shelter with whatever material they can gather. Their shelters are made of mud, leftover scraps of tin sheets, billboards, tires, sticks, and stones. इन दिस पिक्चर यू कैन सी दैट अगर हम पीछे देखें तो पीछे हमें ऐसी बिल्डिंग्स दिखाई दे रही हैं जो कि स्काई को टच कर रही हैं, और हम आगे देखते हैं तो हमें ऐसे छोटे छोटे घर दिखाई दे रहे हैं जो कि प्रॉपरली बने भी नहीं हुए. तो इन्हें बोला जाता है स्लम. जो स्लम एरिया में जो लोग होते हैं वो ऐसे लोग रहते हैं जो विलेज से आते हैं किसी भी शहर में या किसी भी जगह पर अपना काम ढूंढने, और उनको जो भी मटेरियल मिलता है वो उसी से अपना घर बनाते हैं और वहाँ रहने लग जाते हैं. स्लम एरिया में बेसिकली जो है वो पुअर लोग रहते हैं क्योंकि वो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं किसी भी अच्छे घर में रहना, तो इसीलिए वो लोग ऐसे किसी भी मटेरियल से बने हुए घर में रह लेते हैं. उनको बेसिकली एक शेल्टर चाहिए होता है जहाँ पर वो आके रह सकें. These slums are not legal colonies and do not even have basic facilities such as toilets, sewerage,
drinking water, or electricity. These areas are breeding grounds for germs and pests like rats and mosquitoes. Since people in slums live in such hygienic conditions, they are prone to various diseases. Fire is also a major threat in these tightly packed areas. The government makes effort to provide a low cost housing with basic facilities for people living in slums. The local governments and welfare organizations try to provide water, electricity, and other basic needs. ये जो स्लम्स होती हैं ये लीगल कॉलोनीज नहीं होती हैं, एंड इनके अंदर बेसिक फैसिलिटीज़ जैसे कि टॉयलेट, सीवरेज, ड्रिंकिंग फैसिलिटी या इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का भी कोई ऐसा सिस्टम नहीं होता है. ये जो एरियाज़ होते हैं बहुत ही टाइटली पैक्ड अप एरियाज़ होते हैं. मीन्स बहुत ही छोटे छोटे घर बहुत ही कम जगह में बने हुए होते हैं और बहुत ही ज़्यादा गंदगी होती है इन जगहों पर. इसीलिए जो एरियाज़ हैं ये ब्रीडिंग ग्राउंड्स हैं. मीन्स मच्छरों, रैट्स के फैलने के लिए बहुत ही ज़्यादा सही जगह है. ऐसी गंदी जगहों पर ही रैट्स और मस्किटोज पनपते हैं, पैदा होते हैं और फैलते हैं पूरी सारी जगहों पर. सिंस पीपल इन स्लम्स लिव इन सच हाइजीनिक अनहाइजीनिक कंडीशंस, जो लोग हैं बहुत ही ज़्यादा अनहाइजीनिक कंडीशंस में रहते हैं. मीन्स वहाँ पर टॉयलेट भी नहीं है, सीवरेज और ड्रिंकिंग की भी फैसिलिटी नहीं है, और वहाँ पर मस्किटोज और रैट्स भी बहुत सारे हैं. तो जो वहाँ की जो कंडीशंस है वो रहने के लिए सही नहीं होती हैं. इसीलिए जो वहाँ के लोग होते हैं उनको बहुत सारे डिसीजेज होने के खतरा रहता है. Fire is also a major threat in these tightly packed areas. मीन्स सब कुछ बहुत ही छोटे से एरिया में बना हुआ होता है, इसीलिए यहाँ पर आग लगने का भी खतरा होता है. जो गवर्नमेंट है हमारी वो बहुत सारे एफर्ट्स कर रही है इन स्लम एरियाज़ वाले लोगों को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए. वो कईयों को छोटे छोटे घर भी दिए जाते हैं और वहाँ पर स्लम एरिया में वाटर, इलेक्ट्रिसिटी और बेसिक नीड्स की ज़रूरतें, बेसिक नीड्स की चीज़ें पहुँचाने की भी कोशिश करती रहती है गवर्नमेंट टाइम टू टाइम. थैंक यू. हैव ए नाइस डे.